بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبید و خوشیاں منا رہے ہیں۔ کچھ لوگ میلاد شریف میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، پھر ہم اگر یہ شعر پڑھیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبید و خوشیاں منا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں شیطان کہہ دیا۔ اب خود بتاؤ کہ شیطان کے طریقے پہ کون ہے؟ محدثین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ شیطان پریشان تھا۔ اب یہ لوگ پورا مہینہ میلاد منانے والوں پر زبان چلاتے ہیں اور طرح طرح کی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اب ان کا ایک بہت بڑا عالم دین دیوبندی حضرات کا، جس کو بندیالوی کہا جاتا ہے، جی بندیالوی کہتا ہے، یہ ان کا ایک تقیہ کلام ہے۔ اب وہ دعوت اسلامی پر بالخصوص مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ القدسیہ پر ہٹ کر رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ مولانا یہ جو آپ جلوس نکالتے ہیں میلاد کا، صحابہ نے نکالا، تو آگے سے قادری صاحب کہتے ہیں جی صحابہ نے بریانی کھائی، بریانی کس صحابی نے کھائی تھی؟ اپنی بریانی ثابت کرو بخاری سے، پراٹھے قورمے ثابت کرو، پیزے ثابت کرو۔ آگے سے ٹھٹھا کرتے ہیں بریلوی صاحب، کہتے ہیں دیکھو جی کیسی علمی بات کی ہے، بڑا آپ کے پاس علم ہے، آپ کا منہ چوم لے، یہ ہے وہ ہے۔ کوئی تمہارے پاس دلیل نہیں۔ وہ ایک بابا ہے کراچی کا، ان کا چینل ہے، اس بابے سے کسی نے پوچھا تم جو میلاد کا جلوس مناتے ہو، بناتے ہو، نکالتے ہو، یہ صحابہ نے نکالا تھا؟ صحابہ سے ثابت ہے؟ تو بابا جی جواب دیتے ہیں اے جڑی بریانی تساں کھاندے ہو اے صحابہ کھاتی سی؟ واہ، صدقے جاواں تہاڈی دلیل تے، تہاڈا منہ چوم لے بھی خدا دی قسم۔ اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا ہے جی، علمی باتیں ایسی ہوتی، بڑا علم ہے جی آپ کے پاس۔ بریانی، میں نے واکنڈ میں تقریر کی اسی بدعت کے موضوع پر، تو ایک مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب کہنے لگے بندیالوی کہتا ہے میلاد کا جلوس بدعت ہے اس لیے کہ صحابہ نے نہیں نکالا تھا۔ بندیالوی جس کار تے چڑھدا وہ صحابہ دے زمانے چ ہے سی؟ بندیالوی جو اینک پہنتا ہے یہ صحابہ پہنتے تھے؟ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دین نہیں ہے؟ اور میرے آقا نے کہا تھا من احدث، ہر نیا کام دین، ہر نیا کام بدعت نہیں، ہر نیا کام بدعت نہیں۔ میرے آقا نے قید لگائی من احدث فی امرنا، محدثین نے لکھا اے فی دیننا، اے فی دیننا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام دین سمجھ کے کیا فَهُوَ رَدٌّ، فَهُوَ رَدٌّ۔ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، ہون جو نچنا جے نچو، کدنا جے کدو، جو تم نے کرنا ہے کرو۔ تو میں کہتا ہوں مولوی صاحب یہ بتائیں کہ ائمہ دین نے بدعت کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ ائمہ دین نے بدعت کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح صحیح مسلم دیکھیں، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ کے تحت، اب جب بدعت کی وہ تشریح کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مخصص ہے اس کی جس میں رسول اللہ نے فرمایا کل بدعت ضلالۃ۔ اب کہتے ہیں ان البدع خمسۃ اقسام، بدعت کی 5 قسمیں۔ مولوی صاحب اب لگائیں امام نووی پہ فتویٰ لگائیں، کون سی؟ واجبۃ و مندوبۃ و محرمۃ و مکروہۃ و مباحۃ۔ سب سے پہلے ایک بنیادی اصول امام نووی اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب بدعت کو 5 حصوں میں بانٹا تو انہوں نے کہا تھا اگر کوئی نیا کام شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو تو وہ ایک واجب، ضروری جیسے قرآن اور حدیث کو کتابی شکل میں جمع کرنا، یا مستحب، پسندیدہ جیسے تراویح کی نماز، یا مباح، جائز جیسے کھانے پینے اور زندگی جینے کے جائز طریقوں کو بدلنا ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی نیا کام شریعت کے خلاف ہو تو وہ حرام،
नाजायज या मकरूह नापसंदीदा होगा। अब आते हैं आपके असल सवाल पर। ईद मीलादुन्नबी मनाना यानी 12 रबीउल अव्वल को खास तौर पर जश्न, तकरीरें, मिठाइयाँ, मेले, झंडियाँ, जुलूस निकालना वगैरह, तो इसका हुक्म क्या होगा? एक, क्या यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था? नहीं, न आपके दौर में, न खलीफा राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान वली रजल्लाहु अन्हु के दौर में, न सहाबा रजल्लाहु अन्हु या ताबेन रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माने में। 2, क्या इसके लिए कोई शरीयत से दलील मिलती है? नहीं, न कुरान में, न सुन्नत में, न सही हदीसों में इसकी कोई तायद मिलती है। 3, तो फिर यह बिदअत किस तरह की होगी? क्योंकि यह दीन में एक नया तरीका है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न किया, न सहाबा रजल्लाहु अन्हु ने, और इसे दीन के नाम पर किया जा रहा है, इबादत, तकरीबात वगैरह। इसलिए यह हराम बिदअत, बुरी बिदअत के अंदर आएगा। इब्ने रजब हम्बली रहिमहुल्लाह ने फरमाया, बिदअत वही कहलाती है जो शरीयत के उसूलों के खिलाफ हो, और ईदें बनाना उनमें से एक है। रुजू किताब जामिउल उलूम वल हिकम हदीस 28 की शरह। अब मौलवी साहब बंदियालवी साहब जो हैं वो तशरीह करेंगे कि वाजिब बिदात कौन सी हैं, मंदूब बिदात कौन सी हैं, मुहर्रमा बिदात कौन सी हैं, मकरूहा बिदात कौन सी हैं, मौलवी साहब तशरीह करेंगे। मौलवी साहब उलमाए दीन ने मुबाह जो बिदात हैं उनमें ये नए किस्म के कपड़े, ये तरह तरह के खाने इसमें शामिल किए हैं। ये जो छलनी आटा छानने वाली, ये आपके घर में 3 दफ़ा बिदत होती है मौलवी साहब, आपके घर में छलनी मौजूद है आटे वाली, और उलमा ने लिखा है कि ये छलनी ये मुबाह बिदत के अंदर है। सहाबा रसूलुल्लाह आटा छान के नहीं खाया करते थे। उधर आप आयत पढ़ते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो क्या खाने पीने के बारे में रसूलुल्लाह का कोई उसवा नहीं है? सहाबा का कोई उसवा नहीं है? मकान के बारे में सहाबा का कोई उसवा नहीं है? सवारी के बारे में सहाबा का कोई उसवा नहीं है? आप अगर कार पे सफ़र करते हैं तो ये मुबाह बिदत है मौलवी साहब, वरना आप ना कर सकते। तो इसलिए ये आप ठट्ठा कर रहे थे। आप बताएं कि जहालत का मुजाहरा किसने किया है, मौलाना इलियास कादरी साहब ने या आपने? इल्मी बात किसकी है, आपकी या मौलाना इलियास कादरी साहब की? इलियास कादरी साहब ने जो बात की अपनी तरफ से नहीं की, ये आइम्मा दीन ने बयान किया है कि बिदत की 5 किस्में हैं। ये फतुल बारी में इब्न हजर भी कह रहे हैं वक़द तनक़सिमु इलल अहकामिल खमसा, कि बिदत को 5 किस्मों में तकसीम किया गया है। ये 2 उम्मत के अजीम इमामों की गवाही पेश कर रहा हूँ, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न हजर अस्कलानी, इन 2 शख्सियात ने बिदत की 5 किस्में बयान की जिनमें मुबाह भी है। अब मौलवी साहब बताएंगे कि मुबाह बिदात कौन सी हैं। अगर बिदत की एक ही किस्म है, हर बिदत गुमराही है, तो फिर इन आइम्मा दीन पर क्या फतवा है जिन्होंने 5 किस्में बयान की हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मशहूर हदीस, क़ाला अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कुल्लु बिदअतिन दलाला व इन रआहा अन्नासु हसना, हर बिदत गुमराही है चाहे लोग उसे अच्छा क्यों ना समझें। सुनन अल-दारिमी 1/79, अल्लाल काई 126 सहीह तसहीहुल मसाबिह। पहले मौलाना लगाएंगे फतवा सहाबी ए रसूल अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर, क्योंकि वो भी हर बिदत को गुमराही कह रहे हैं, मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने इमाम नववी और इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि की जो तहकीक पेश की है, उसका सहारा लेकर भी आप ईद मीलादुन्नबी को एक अच्छी बिदत साबित नहीं कर पाए, बल्कि उन इमामों के नज़दीक भी ईद मीलादुन्नबी मनाना 5 बिदतों में से हराम बिदत में गिनी जाती है। तो पता चला, मालूम हुआ कि इलियास कादरी साहब ने वाकई ही इल्मी बात की है, आइम्मा दीन की बात को अपनी जुबान में बयान किया, लेकिन आपने अपनी जहालत का मुजाहरा किया। पता ये चला कि आपकी जो बिदत की तारीफ है उसका कुरान सुन्नत और आइम्मा दीन से कोई तल्लक नहीं, घर की घड़ी हुई है। सबसे पहली बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बिल्कुल साफ है, कुल बिदअ दलाला व कुल दलाला फिन्नार, हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। हदीस मुस्लिम 867, तिरमिजी 2676। यानी दीन के मामले में कोई भी नया काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं किया, वह हर हालत में गुमराही है, इसमें कोई शक नहीं। अब सवाल आता है, तो फिर इमाम नववी और इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने बिदत को 5 हिस्सों में क्यों बांटा? क्या वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ गए? जवाब, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने बिदत का लुग़वी भाषाई मतलब लेते हुए यह तकसीम विभाजन किया।
असल फर्क ये है आसान शब्दों में, जब बिदअत दीन के अंदर नया काम हो, ये हराम और गुमराही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जब बिदअत दुनिया के कामों में हो, जैसे माइक, स्कूल बनाना, किताब छापना, तो वो बुराई नहीं होती, बल्कि जरूरत के मुताबिक हुक्म बदलता है। निचोड़, खुलासा। 1. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हर बिदअत गुमराही है, शरई बिदअत के लिए है। 2. इमाम नववी और इब्न हजर ने बिदअत की 5 किस्में लुगवी और आम मानी में बयान की हैं, ना कि शरई बिदअत को जायज ठहराया है। 3. दीन में नया काम करना हर हाल में गुमराही है, चाहे कोई उसे अच्छा माने या नहीं। फिर आपने जो ये हदीस पाक बयान की, मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिनहु फवरद, आपने मा लैसा खा गए। मा लैसा क्या है मौलवी साहब? जो हमारे दीन में कोई तरीका ईजाद करेगा, मा लैसा मिनहु फवरद, जो उसमें नहीं होगा वो रद्द होगा। अब मा लैसा क्या है, इसकी क्या उलमा ने तशरीह की है? जिसकी असल नहीं होगी वो रद्द होगा। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की आप कहते हैं कि असल में शरअ में बिदअत वो होती है जो मुकाबले सुन्नत होती है, सुन्नत के मुखालिफ होती है। अगर वो किसी कबीह के तहत आए तो वो कबिया होती है, अगर किसी मुस्तहसन के तहत आए तो मुस्तहसना होती है। ये उन्होंने तशरीह की उलमाए दीन ने। तो लिहाजा आपकी बिदअत की तारीफ खुद बिदअत है। फिर आप जो कहते हैं फिद दीन लिद दीन, ये भी आपकी खुद गुमराही है। इसलिए हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसना के तहत बिदअत की ये तारीफ की है। समझ आ रही? यानी वो ये बयान कर रहे हैं कि इस्लाम के अंदर जिसने अच्छा तरीका जारी किया उसको सवाब मिलेगा, इस्लाम के अंदर जिसने बुरा तरीका जारी किया उसको अज़ाब मिलेगा। पता चला इस्लाम के अंदर अच्छा तरीका करने जाद करने की इजाज़त है, क्योंकि उसकी असल मौजूद होगी। मा लैसा मिनहु फवरद। मौलवी साहब, इल्म की आपको हवा नहीं लगी, अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपका मुंह चूम लूँ। वाह, क्या आपने इल्मी बात की है, बड़ा इल्म है जी आपके पास। आखिर में मुजद्दिद अल्फ एसानी यानी शेख अहमद सरहिंदी का कौल मुलाहिजा फरमाइए, बिदअत अगरचे ज़ाहिरी तौर पर अच्छी मालूम हो, लेकिन हकीकत में दीन की बर्बादी का रास्ता है। मकतूबात, दफ्तर अव्वल, मकतूब 166।